This exciting, colorful animation is for you to understand the question is in a visualization form. It shows that line is made up of small elements, and we this purple element is showing that we will be taking this point to solve our question in a better form. We have to find electric field at the end point of the line, so which is shown by the white sphere and which is z distance above the line, and the purple point, which is infinitely small element of the line, is x distance apart from the origin, and we have mentioned it as dx, and the position vector of that purple element is r. So we are with our problem number 2.3 of Griffith, and the animation which we have already seen before has already explained how we will approach this question, and a previous video which was similar to this but of a different the point for which the electric field has to be found was situated at the midpoint of the line, but in this question it is at the end point. So first we'll go with the question. So what the question says is we have to find electric field at a distance z above one end of a straight line segment of length L, and that carries a uniform line charge lambda, and we also have to check that our formula is consistent with what you would expect for the case z is very large than L. So most important is we write ki what is given in the question. So let's write given. So what we know is कि we have to find electric field for a point which is at z distance above the straight line. तो मतलब हमारा जो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारी लाइन से z डिस्टेंस पे है, दिस इज गिवन, एंड इसमें हम मान क्या रहे हैं कि हमने एक बहुत ही इन्फाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लिया है लाइन का, दैट इज दिस dx, जिससे हम इस रेड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, एंड दैट इज शोन बाय आर वेक्टर. सो आर वेक्टर शोज दैट कि हम इस इनफाइनाइटली स्मॉल dx एलिमेंट जो लाइन का एलिमेंट है वहाँ से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. हमें लाइन सेगमेंट के इस पॉइंट से निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन. सो दिस इज, लेट्स से कि ये मान लो हमारा मिड पॉइंट है 0, एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस. So this x-axis and the position of this infinitely small element which we have taken from the line is x distance from the midpoint, which is shown here, and this element is dx obviously, क्योंकि अगर हम एक लाइन का बहुत छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं दैट इज dx, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमें पता है कि जो हमारी लाइन है वो पूरी कंप्लीट लाइन छोटे छोटे एलिमेंट से बनी हुई है, जो कि हमने एनिमेशन में भी देखा. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटे से एलिमेंट से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस छोटे से एलिमेंट से उसी जो हमारी इनफाइनेटली स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट के लिए, हम उसी का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर हम उसे फुल लाइन के लिए निकाल लेंगे. सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम देख लें कि हमारी क्या क्या, तो हमारा जो पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो z एक्सिस की डायरेक्शन में है. तो अगर मैं इसकी पोजीशन लिखूँ तो आई कैन से कि ये x पे 0 है, y पे 0 है, लेकिन z पे z है. और यहाँ पे हमारा जो लाइन, ये जो इनफाइनेटली स्मॉल जो एलिमेंट हमने लिया है dx, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है x 0 0, because it is an x axis and the point where we have to find the electric field is in z direction. So now let's continue with our question, and let's say कि ये theta angle बना रहा है यहाँ पर. So we mention it is at it as theta.
So let's begin with writing our. Okay, so what we know that the line carries uniform line charge lambda, so it has uniform line charge lambda. And what else we know is कि length जो है segment का, that is length of line segment is L, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा ना, ये जो पूरी जो हमारी लाइन है, I'll write it here, ये जो हमारी पूरी लाइन है ना, ये L लेंथ की है, मतलब ये जहाँ पे एंड हो रही है ये L है। नाउ व्हाट वी नो कि हमें जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, लेट्स राइट इट। हम पहले एक छोटे से एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास चार्ज का भी एक छोटा एलिमेंट है। सो लेट्स राइट स्मॉल infinitely small electric field due to infinitely small charge that is at dx। ठीक है, तो ओके, लेट्स राइट इट लाइक दिस कि हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने सारी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, वो ऐसे होता है 4πε0। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत यहाँ पर वो होता है summation I is equals to 1 to n, and that goes for qi, and this goes for ri square ri cap. So this shows the direction of the resultant electric field, and this shows the position vectors ka. I'll show you like this, r1 minus r2, and where r2 will be the source point जहाँ पर चार्ज है, और r1 is the position vector for the point जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। So now what we want is let DE be the infinitely small electric field due to small charge element at dx। तो पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं उस पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या चाहिए, क्यू चाहिए ना। सो व्हाट वी वांट इज कि हम अपना डी क्यू निकाल लेते हैं कि हमारा ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसमें चार्ज क्या होगा। लेट्स से कि डी क्यू हम उसे मानते हैं, तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताती हूँ कि यूनिफॉर्म लाइन चार्ज क्या होता है। यूनिफॉर्म लाइन चार्ज का मतलब है लैम्डा जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, विच मीन्स कि उस पूरी लाइन में जो एक यूनिट है बहुत छोटी सी, उसका जो चार्ज है वो लैम्डा है। तो मान लो कि मैंने ये एलिमेंट लिया जो dx है और मुझे इसका चार्ज निकालना है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, लैम्डा dx ना। तो वही है कि हमारा dq जो होगा वो होगा लैम्डा dx। तो हमारे पास dq है, तो अगर मैं अपना E लिखना चाहूँ, दैट इज DE स्मॉल infinitely small electric field at dx, so what it will be, it will be 1 by 4 pi epsilon naught, and इंटीग्रेशन y इंटीग्रेशन, क्योंकि हम सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को पहले इंटीग्रेशन अभी नहीं आएगा, जब हम कंप्लीट E के लिए निकालेंगे ना तब आएगा। So what is DE? 1 by 4 pi epsilon naught, and this will be dq by r, because हमारा यहाँ पर क्या है, हमने कौन से r से डिनोट किया है, हमने इस r से डिनोट किया है ना। So we go with this r, तो ये r square and this r cap, r cap। ये हमारे पास डी क्यू भी है, तो हम आर स्क्वायर निकाल लें ताकि हम आर स्क्वायर भी रख सकेंगे अपना फॉर्मूला में।
तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या आ रहा है। सी, ये हमारा जो एंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा जो हमारा आर स्क्वायर है वो है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और क्या और क्या क्या इससे निकाल सकते हैं ये, ठीक है, दिस इज सिंपल। और अब सिर्फ मैग्नीट्यूड तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें चाहिए होगी डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए जो होता है। तो लेट्स गो विद द डायरेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। नाउ वी वांट टू फाइंड आर कैप, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट कि हमें पता हो कि हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम आर को, क्या क्या है एक्चुअल में आर। तो आर पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा सोर्स वेक्टर है वो है हमारा एक्स डायरेक्शन में, सोर्स जहाँ पर हमारा चार्ज का सोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में है, और जो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो जेड डायरेक्शन में है। सो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कितनी दूर है पॉइंट से, जेड, जेड है उसकी पोजीशन, और कौन सी डायरेक्शन में, जेड कैप में। और माइनस जो हमारा सोर्स है, सोर्स चार्ज है वो हमारा कितना है मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट कह रही हूँ, फ्रॉम द ओरिजिन इट इज एक्स डिस्टेंस अपार्ट, मीन्स एक्स है उसकी पोजीशन, मैंने यहाँ पर भी मेंशन की थी, एंड एक्स कैप है उसकी डायरेक्शन। सो दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर में हमें पता है वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड ऑल्सो इट्स डायरेक्शन। तो अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है, सो आई वांट टू डू इज कि मैं आर कैप को डिवाइड कर दूं आर के मैग्नीट्यूड से, सिंपल। तो लेट्स डू दिस कि मैं अपना आर कैप निकाल लेती हूँ, दैट विल बी जेड जेड कैप माइनस एक्स एक्स कैप डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, ये रहा, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। सो आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा था, लिख देती हूँ यहाँ पर भी, लेट्स राइट इट हियर आल्सो। दिस इज r square is equals to z square plus x square and r cap is equals to z z cap minus x x cap divided by z square plus x square। तो जो जो हमारे पास आ गया है हम उन सबको अपनी इक्वेशन में रखेंगे, जो कि इक्वेशन थी हमारी ये वाली, हमारे पास जो जो है हम उन सबको अब अपनी जगह पर रख देते हैं। सो व्हाट DE इज, दिस इज 1/4πε0, एंड DQ क्या है हमारे पास, ये रहा हमारा DQ एंड दैट इज लैम्डा dx, आर स्क्वायर ये रहा दैट इज जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड आर कैप हमारा ये रहा। सो आर कैप लिखते हैं जेड जेड कैप माइनस एक्स एक्स कैप डिवाइडेड बाय रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब हमें करना क्या है, हमें एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ पर निकालनी है ना, फुल निकालनी है। वी वांट टू डू कि पूरा लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता हो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब हमने एक छोटे एलिमेंट के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाल ली है, अब हम चाहते हैं कि ये पूरी लाइन चार्ज के लिए बने, तो लेट्स इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेटिंग इट फॉर 0 to L लेंथ के लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो D का इंटीग्रेशन
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा हमें, ओवरऑल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारा इंटीग्रेशन लैम्डा डी एक्स बाय जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैं डी एक्स को लास्ट में भी लिख सकती हूँ। सो जेड जेड कैप माइनस एक्स एक्स कैप डिवाइडेड बाय रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अब ये, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ इंटीग्रेशन का पार्ट है, दैट इज प्योरली मैथमेटिकल। अगर किसी को इंटीग्रेशन आता है तो दिस इज वेरी गुड, यू कैन स्किप इट। एंड इफ यू डोंट नो इंटीग्रेशन तो हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जो बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं हम सब वही वाले फॉर्मूलाज यूज करेंगे ताकि हम निकाल सकें। तो दिस विल, अब हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि देयर आर टू कंपोनेंट्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक है हमारे पास x कंपोनेंट और एक है हमारे पास z कंपोनेंट, राइट। तो अब मुझे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं इसे ऐसे फॉर्म में लिख लूँ। पहले यहाँ पर dx लिखना था, ओके। सो लिख लेते हैं हम इसे टू, ताकि मैं इसे इजीली आपको शो कर सकूँ कि दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो लैम्डा कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है। मैं पहले x कंपोनेंट लिख लेती हूँ, दैट इज माइनस एक्स एक्स कैप डिवाइडेड बाय रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। एंड तो ये x कंपोनेंट है, मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा x कंपोनेंट है, ऑब्वियसली यहाँ से मैंने इसे लिख दिया। अब एक एक चीज और, अभी यहाँ पर एक और चीज लिखनी रह रही है, दैट इज दिस वन। तो मैं इसको कंप्लीट ही लिख देती हूँ ना, सो आई विल राइट इट कंप्लीट। कि ये नीचे क्या बचा, नीचे बच रहा है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर है हमारे पास लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू एल इंटीग्रेशन माइनस एक्स, एंड दिस इज होल कंपोनेंट, मतलब ये पूरा ही एक्स डायरेक्शन में है, एक्स कंपोनेंट है हमारा। सो वी आर डूइंग इट माइनस एक्स डी एक्स, ये पूरा हमारा एक्स कंपोनेंट है। नाउ लेट्स राइट आवर जेड कंपोनेंट उसी इक्वेशन से। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इस इक्वेशन का, दिस इक्वेशन से हम अपने कंपोनेंट्स लिख रहे हैं। तो मैं उसे वहां से इरेज करके नीचे लिख देती हूँ। Okay, now this is for x component. Now let's do for z component। क्या है हमारे पास, lambda constant 4 pi epsilon naught, z is also a constant, है ना, क्योंकि हमें तो पता है ना कि हमारी z तो स्टार्टिंग में ही मेंशन था कि जो वो पॉइंट है वो कितनी दूर है, तो z is constant है 0 टू l। तो अब z वाले जो है उसमें क्या बच रहा है, उसमें कोई कंपोनेंट नहीं बच रहा, इट ओनली हैव dx एंड नीचे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, सिंपल। नाउ अब हमारे पास ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो लेट्स सॉल्व इक्वेशन 1 एंड आर इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए लेट्स डू कि लेट u is equals to x square plus z square. So what will be du? Du will be 2x dx, क्योंकि हमें पता है z तो कांस्टेंट है ना, तो ये हमारा ये हो गया। Then okay, now let's put this values, रख देते हैं हम अपनी values। 4 pi epsilon naught 0 to l and minus x, ये वाला निकाले, पहले नीचे वाला लिख लेती हूँ, मैं नीचे डाल देती हूँ।
जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यू लिखा है तो दिस इज यू 3/2, राइट। अब डी यू बाई डी एक्स है 2x dx, हमें ऊपर लिखा है हमारे पास x dx। x dx क्या होगा, यहाँ से हमारा x dx होगा डी यू बाई 2, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव साइन भी है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव डी यू बाई 2। ओके, सो व्हाट वी हैव नाउ इज लैम्डा, मैं 2 बाहर रख रही हूँ तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to L, एंड माइनस मैंने बाहर ले लिया, एंड वी हैव नाउ u माइनस 3/2 du। अब ये तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है ना, वो हमारा इंटीग्रेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे, दिस इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन आइडेंटिटी, दैट इज integrating x power n, let's say x power n dx is equals to x n plus 1 by n plus 1. So this is an integration plus constant. So what will be here? So it will be u minus 3/2 plus 1 and minus 3/2 plus 1, and that will be is equals to u minus 1 by 2, and this will be minus 1 by 2, and I will write it like minus 1 by 2, and this ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये माइनस, सो दिस इज सिंपली -2, और माइनस माइनस बाहर आ जाएंगे तो हमारी ये पूरी इक्वेशन हो गई प्लस में लैम्डा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एंड वी हैव 2, हमारे पास 2 भी है ना, और हमारे पास अंदर है 2 माइनस 1 बाई 2 गोज फ्रॉम 0। अब इसमें एक चीज़ और हुई है, हमारी लिमिट्स जो कि हमें चेंज करनी है। तो जब हमने u को रखा तो वो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो हमारी लिमिट्स भी तो चेंज होंगी ना। क्यों होंगी? क्योंकि जब ये लिमिट्स हमने रखी वो x की टर्म्स में थी कि x हमारा 0 to L जाएगा, तो हमारा u क्या जाएगा। तो जब हमारा अब लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं ना, उसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर करती हूँ ताकि सबके लिए इजी रहेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिमिट्स चेंजिंग बता रही हूँ, हाउ लिमिट्स चेंज्ड। तो x के लिए लिमिट्स थी 0 to L, ठीक है। अब मेरा जब x 0 होगा तो मेरा u क्या होगा, मेरा u जो होगा वो दैट विल बी जेड स्क्वायर, क्योंकि मैंने x को 0 रख दूंगी इस इक्वेशन में, ठीक है। और जब मेरा x जो है वो L होगा तो मेरा u क्या होगा, मेरा u की वैल्यू होगी जेड स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही सिंपल, यही है बस। तो यहाँ पर क्योंकि हमने u करा है ना, तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, यहाँ पर हमारी लिमिट होगी जेड स्क्वायर, क्योंकि ये x 0 पर ये वैल्यू है u की और x L पर ये वैल्यू, एंड दिस इज x जेड स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बस हम ये पुट कर देते हैं अपनी इसमें ये x के लिए। सो ex इज 2 to 4 हो गया ना ये वापस, तो दिस इज लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ना, ये 4। ओके, सो लेट्स राइट हमारे पास जो वैल्यूज हैं, दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट जेड स्क्वायर। दिस इज इट। ओके, ये थोड़ा तिरछा चला गया है बट दैट्स ओके,
what we want to do is कि हमें आ जाए करना, and this will be, ये क्या होगा, ये 1/z है ना, so this is 1/root z square plus l square minus 1/z. This component for the electric field, so let's write it. So we got Ex is equals to lambda by 4 pi epsilon naught 1 by root z square plus l square minus 1 by z. Now let's solve for the z component of electric field. So let's solve equation 2. So it is an important equation. Let's say it's A, equation A. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वांट टू से कि जैसे ही हम ये पुट करते हैं ना, यू को हमने पुट किया, डी यू को हमने पुट किया, वैसे ही हमें अपनी लिमिट्स चेंज कर देनी चाहिए. दैट इज अ मोर करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, ताकि हमें लास्ट में कंफ्यूजन ना हो और एकदम करेक्ट हमारा ये रहे. तो ये जेड स्क्वायर है और ये हमारा जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये z square and this is z square plus l square. So let's see equation second. हमारा z component क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का. Okay, so we'll be solving this component, इस component के लिए. So let's do the integration. So what we have is Ez is equals to lambda by 4 pi epsilon naught z, क्योंकि हमारा z कांस्टेंट था तो वो बाहर आ गया था, and we have dx and अंदर we have x square plus z square 3/2, right, and लिमिट हमारी 0 to l है. So what we are going to do, इंटीग्रेशन को सॉल्व करें. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए we'll be using trigonometric function. तो let's say कि मैं x को ले लेती हूँ z tan थीटा. अब बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि डाउट आएगा कि z tan थीटा. तो देखें तो पहले मैंने सोच के रखा कि मैं अगर यहाँ पर z लूंगी, tan थीटा लूंगी, तो मैं यहाँ पर इजीली एक आइडेंटिटी बना पाऊंगी, z स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर भी ला पाऊंगी. तो this is why we are doing it. So let x is equals to z tan theta, then dx क्या होगा हमारा, that will be z sec square theta d theta. So now we'll be putting this value in our equation 2. So Ez is equals to lambda z by 4 pi epsilon naught and dx की जगह पर हमारा z sec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड x की जगह पर हमारा, तो ये पूरा स्क्वायर होगा ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस z स्क्वायर एंड दिस होल 3/2. एंड व्हाट वी सी इन दिस कि जब मैं z स्क्वायर को कॉमन लूंगी तो मेरे पास अंदर बच रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. एंड व्हाट इज दिस इज सिंपली sec स्क्वायर थीटा, वही है ना. तो क्या क्या लिखूं मैं Ez को मैं सिंपली लिख सकती हूँ lambda z 4 pi epsilon naught and this is z sec square theta d theta divided by z square sec square theta and this whole thing is 3/2. Okay,
क्योंकि हमने आइडेंटिटी रखी, इसकी जगह पे मैंने सेक स्क्वायर थीटा रखा। जेड जो हमारा जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये लिखा। पावर 3/2 थी वो लिखी। नाउ व्हाट वी से है कि हमने लिमिट्स नहीं रखी है, तो लेट्स पुट आवर लिमिट्स। मैंने x को z tan थीटा लिया है। यहाँ पर मेरी जो x की वैल्यू होती है, जब x की वैल्यू मेरी 0 होती है, तो मेरा tan थीटा क्या होगा? माई tan थीटा इज, यहाँ पर tan थीटा 0 कब होता है? 0 डिग्री पे। तो थीटा क्या होता है उस टाइम? tan इनवर्स 0 डिग्री। एंड व्हेन माई x इज L, x इज L, तो tan थीटा क्या होगा? दैट इज L/Z। एंड थीटा हमारा होगा tan इनवर्स L/Z। सिंपल। So what it is here, this is 0 and this is simply tan inverse L/Z। वैसे मैं इसे सिंपल अगर नहीं भी चेंज करूँ तो अभी मैं ये दिखा देती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर डी थीटा को बाद में दोबारा एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस नो बिग डील कि तुम्हें यहीं पर लिमिट पुट करनी है और फिर वो लिमिट को तुम्हें अंदर रखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। विल डू कि हम थीटा में इसे सॉल्व करेंगे और वापस हम इसे एक्स में रख देंगे। उससे क्या होगा, हमारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सो व्हाट वी डू नाउ, डी जेड हमारा क्या है? लैम्डा जेड 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन। अब z ये 3/2, सो 3/2 2 कट जाएगा, तो ये सेक क्यूब थीटा हुआ। तो नीचे क्या बच रहा है हमारे पास? सेक थीटा। जेड स्क्वायर, या यहाँ पर क्या बचेगा? जेड क्यूब बच रहा है। ऊपर हमारे पास जेड है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। सो नाउ पूरा ओवरऑल सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन। ये बच रहा है हमारे पास। नीचे हमारे पास बचेगा जेड स्क्वायर, जिसको मैं बाहर ले लेती हूँ। एंड पूरा ये नीचे सेक स्क्वायर थीटा, ये कटने के बाद ये सेक क्यूब बच रहा है ना नीचे, तो नीचे हमारे पास सेक बचेगा 1/सेक थीटा। ऊपर डी, ये क्योंकि हमने अभी इंटीग्रेट नहीं किया है तो डी थीटा आएगा। एंड 1/सेक थीटा इज कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन लैम्डा। नीचे बच रहा है अब सिर्फ जेड यहाँ से, तो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन जेड ई जेड। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है साइन थीटा होता है। अब मैं साइन थीटा को थीटा से एक्स में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। एक्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? हमें हमारा डायग्राम याद है ना, ये हमारा डायग्राम था। दिस इज जेड, दिस पॉइंट इज डी एक्स एंड दिस इज एक्स डिस्टेंस अपार्ट। ये 90 डिग्री एंगल है एंड दिस पॉइंट इज आर and this is theta. So what we know about sine theta is perpendicular y hypotenuse. So what is our perpendicular? That is x. And what is our hypotenuse? That is r. And r का magnitude हमने निकाला था, that is x square plus z square. तो मेरा sin theta simply क्या है? ये x की टर्म में. So I have converted my theta, converting थीटा टू एक्स। अब क्या होगा, क्योंकि अब लिमिट रखना मेरे लिए इजी हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई वाज डूइंग दैट। तो ये एक्स 0 टू लिमिट्स मेरे पास क्या रहेंगी? 0 टू एल एंड दिस इज, इसमें हमें लिमिट्स रखनी है 0 टू एल। सो क्या होगा? एल रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, and this whole term will be
x की जगह पे 0 and Ez will be lambda 4 pi epsilon naught z, and this is our important equation B. Up to So now we know our Ez component. So now we want to write resultant electric field that will be the sum of x component and z component of electric field, जो कि हम निकाल चुके हैं। ये हमारे इक्वेशन A से आया था और ये हमारा इक्वेशन B से आया था। So let's write हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हमारा जो Ex component जो हमारी A इक्वेशन थी, लेट्स गो बैक टू आवर A इक्वेशन ताकि हम वो लिख लें। सो आर Ex is this Ex, तो वी विल राइट दिस Ex component और Ez component जो अभी हमने निकाला है वो हम दोनों को पुट करेंगे और अपनी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। So Ex is lambda by 4 pi epsilon naught 1 by root z square plus L square minus 1 by z। ठीक है, ये हमारी x component है। Now our z component is ये वाला component। ये हमारा जो कंपोनेंट है ये हमारा z कंपोनेंट है। तो अब हम अपना z कंपोनेंट लिख लें, दैट इज लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z l डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 0, दैट इज कि ये 0 वाली टर्म तो क्यों लिख रहे हैं हम, ये हो गया कंप्लीट। So this is our z component, electric field in z direction। तो अब क्या, अब एक चीज कर सकते हैं, या तो हम यही रखें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, ये टर्म और ये टर्म को सेम कर दें। तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं z से मल्टीप्लाई करूँ इस इक्वेशन को और z से ही डिवाइड करूँ तो मेरे पास ये और ये सेम हो जाएगी। तो मैं इस टर्म के साथ करूँगी, मैं इसको z से मल्टीप्लाई करती हूँ और z से डिवाइड करती हूँ। तो जब मैं इसे z से मल्टीप्लाई करूँगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं इसे z से डिवाइड कर दिया, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ z से। सो दिस इज z स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस क्या होगा z बाय z x कॉम्पोनेंट, और जो हमारा ये था ये तो वह वही रहेगा ना सेम, क्योंकि इसमें तो हमने कुछ किया नहीं। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और ये हमारा z कंपोनेंट है। सो दिस इज -1, तो मैं इसे -1 लिख दूं। ओके, सो नाउ अब मैंने इसे ऐसे क्यों लिखा है, इसका एक मेन पर्पज है क्योंकि हमें स्पेशल केस के बारे में पढ़ना है। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि स्पेशल केस है कि z जब बहुत ही ज्यादा होगा l से तो क्या होगा। तो इस केस में जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा है कि क्या होता है कि हमारा ऐसी सिचुएशन में जो हमारा लाइन चार्ज होता है दैट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। इसको ऐसे अगर हम देखें माइंड में विजुअलाइजेशन से, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो हमारी जो लाइन है उससे बहुत दूर है, z जो है वो बहुत बड़ा है हमारी l से। यही मीनिंग है इसका। अब अब ये मीनिंग है, तो मैं देखती हूँ इन दोनों में एक कॉमन टर्म है जो कि है, सॉरी दिस इज z, दिस इज z। तो हमारे पास कॉमन टर्म है
जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस टर्म को देखते हैं। दिस टर्म जब z बहुत ज़्यादा हो जाएगा l से, तो एल स्क्वायर जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, नियरली ज़ीरो। पूछो क्यों? क्योंकि l वैसे ही कम है, और जब l कोई भी कम वैल्यू का, मतलब मान लो 0.5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये और भी कम वैल्यू हो जाती है। वैसे ही एल स्क्वायर की वैल्यू और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, तो ये जो पूरा ये बचेगा जेड स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू जेड। तो मतलब इस टर्म को मैं क्या लिखूं? मैं इस पूरी इक्वेशन में इस टर्म को लिख सकती हूँ z, अगर मेरी केस जो है ये है। तो पहले मैं अपना x कंपोनेंट देखती हूँ। मेरा जो x कंपोनेंट है उसमें ये वाला देखो, ये पार्ट देखो, इसको अगर मैं z लिख देती हूँ इस केस के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस पार्ट को z लिख दूंगी तो ये 1 हो जाएगा कैंसिल होके। सो दिस विल पार्ट विल बी z माइनस 1, और ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0। तो मतलब जो हमारा ex कंपोनेंट है, हमारा जो ex कंपोनेंट है वो है 0 इस केस में। और तो बचेगा क्या हमारा? हमारा सिर्फ बचेगा ez कंपोनेंट। तो हमारी जो ez कंपोनेंट बच रहा है हमारा, सिर्फ ex कंपोनेंट हमारा 0 हो गया है, हम यहाँ पर वैल्यू रखी उससे। तो हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ez डायरेक्शन में होगी इस केस में, और जो कि होगी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड एल बाय, ये पूरे z हो गया, एंड दिस इज z कैप। तो अब हम देख रहे हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ रही है लैम्डा एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर जेड कैप। अब अगर देखो जनरल फॉर्मूला से अगर इसे कंपेयर करो तो व्हाट यू विल फाइंड कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका चार्ज क्या है? लैम्डा एल है। और यही होना था, क्योंकि हमारा जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था डी क्यू क्या है हमारा, dx लिया था हमने। अब मैं अगर पूरा चार्ज निकालना चाहती हूँ तो मेरा ये 0 टू l है, सो दिस इज, ठीक है। मतलब हमारी ये जो है ये 1 यूनिट का चार्ज है लैम्डा, और ये हमारी फुल लेंथ है, तो हमारा टोटल चार्ज आ गया है। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये जो हमारी पूरी लाइन थी, अब ये लाइन नहीं है, अब ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है हमारे z पॉइंट, ये पॉइंट के लिए जो कि z डिस्टेंस दूर है, और z जो कि बहुत ज़्यादा है l से। और इसका चार्ज क्या है? इसका Q जो है वो लैम्डा एल है, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो आई है लैम्डा एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं उसे कंपेयर करने में मुश्किल हो रही तो आई शो यू कि ये वाली फॉर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड लैम्डा एल बाय जेड स्क्वायर। यही होता है जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने क्या देखा, जब z बहुत ज़्यादा हो जाएगा l से, तो दिस लाइन चार्ज विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।